developers, most of the developers shunted the projects. And obviously, when your FSI 42 floor का है and आपको 19 floor ही allowed होने वाले हैं, तो how are you going to do the project? Okay. But the project for us was at a stage जहाँ पे हमने already site खाली की थी. So tenants were basically on rent, and obviously, as I said, that we have had this tag of on time every time. You won't believe, Sahil, हमने within a week's time, our design team worked day night. हमने जो हमारी फ्लोर प्लेट थी, वो जो पेंसिल टाइप बिल्डिंग थी, उसको थोड़ा फ्लैट कर दिया, and we restricted our building to 24. We lost an FSI of almost 30% of whatever we could have done, but we did not stop. And just for information, in the month of March, we are handing over that building with OC. So you left all of your profit or something like that, क्योंकि आप बोल रहे हैं कि वो 42, I think 42, yes, right? Yes, 42 floors के लिए अप्रूव हुई थी, but after this new scheme or whatever, correct. उसके बाद वो directly 20th floor पर आ गई. Yes, and so what we did is कि पहले we didn't lose the entire FSI, but almost I would say 25 to 30% of FSI हमने forgo किया, okay? And because see, it was frankly, if you see, कि if you would have held the project at that time, it would have been first of all loss of capital, because capital 2 साल के बाद रिलीज होने वाला था. Second, इतने सारे लोग जो वहाँ थे, उनको हमने रेंट देके खाली किया था, उनका unnecessary rent, plus as I told reputation of the company doesn't make sense. So with all these aspects, when I saw my mathematics, I saw that there is a ducking of almost around 25 to 30% in the profits, which is something which somebody like me would really not care, if it is going to go against the ethos of the brand. So this is one big decision which has proven us as a company who sticks to the ethos and doesn't care about the profit margin. How this technology is playing a role in this real estate market? How it is helping the real estate market? Please do tell me, because आप इतने सारे projects हैं आपके, मुझे लगता है technology एक बहुत important role play कर रही है इस market. Absolutely. So Sahil, unless and until nowadays you are not in tandem with the tech, you are going to be soon outdated. And हमारी जो मंथन मीटिंग होती है, उसमें हमारा एक सेक्शन होता है, वो टेक का होता है. I'll just give you one small example. Very recently, we have added up a new value addition product in our company. कि हमारा हर एक प्रोडक्ट जो हम हैंड ओवर करेंगे, उसकी जो वाटर टैंक्स होते हैं, उसमें वी आर बेसिकली पुटिंग अप अ मशीन, एंड वो मशीन हमेशा वाटर टैंक में पानी के अंदर रहेगी, एंड इट विल हेल्प ईच ऑफ द पीपल हू वुड स्टे देयर, ओके, टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द प्योरिटी लेवल ऑफ वाटर इन द वाटर टैंक. एंड उसके लिए हमने एक ऐप बनाया. तो हर एक आदमी जैसे आपके नॉर्मली लोगों को माईगेट ऐप मालूम है, जैसे हमने हमारा एक ऐप बनाया है फॉर सिक्योरिटी एंड एवरीथिंग, और उसी ऐप में हमने इसको इंटीग्रेट किया है. तो इमेजिन आपके घर का जो आप पानी पी रहे हो, वो आपको पता चलेगा अभी कि उसकी कितनी प्योरिटी है. ओके, सो दिस इज वन टेक वी इंट्रोड्यूस. आजकल लकीली गवर्नमेंट हैज मेड इट कंपल्सरी बिकॉज ऑफ एनवायरनमेंट कि आपको सोलर टेरेस पे देने ही है, सो ऑब्वियसली वी आर अबाइडिंग विद दैट. सिमिलरली वी आर यूजिंग टेक्निक्स वेरी वी आर ऑल्सो ट्राइंग अदर देन द सोलर. कैसे अगर सिविल एविएशन की हाइट परमिट करती है, तो छोटे हाइट के वी कैन गिव देम द सोलर विंड मिल काइंड ऑफ थिंग, जहाँ पे सोलर के अलावा भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो. सो मंथन मीटिंग में हम every time we try to keep up the tech, but I think the tech which really excited me this time was the water bottle, which I told you. ये सारे सवाल जो मुझे लिख कर दिए गए थे वो है, इनमें से कुछ बहुत सारे सवाल थे जो नहीं लिखे हुए थे, मैंने अपने मन से पूछा because I was really interested. My last question to you कि आपको डर लगता है किसी चीज़ के लिए, किसी चीज़ से? I don't. I feel that I have been blessed that I have been so occupied with the creativity mushroom which keeps on popping up in my mind, And as I said, very few businessmen would take calls like sacrificing profit just because on time project deliver करना है. तो जब आपका intention very clear है कि आपको एक बहुत बढ़िया प्रोडक्ट देना है, on time देना है, profit is secondary, तो किस बात का डर? And I think when your intentions are so clean and clear, I think वो शाहरुख जी का डायलॉग है कि वो आपकी वो सारी कायनात, अगर आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आ जाती है. तो आई थिंक हमारे बारे में वो होता है, एंड देयर सो मच ऑफ पैशन. मतलब नॉट ओनली मी बट आप प्रोजो के किसी भी मेंबर को मिलो,
we the minute we get up, we just want to get out and start doing something amazing, and life has been really beautiful, and this journey of Roosevelt में आपको ये सोचने का हमें कभी मौका ही नहीं मिला कि कब डरे. So in fact, this question came as a shock for me because suddenly I also started feeling यार इतना कुछ कर लिया, कभी डरा नहीं, मैं वही because in the pressure of delivering so much, in the pressure, because I'm telling you, you're not delivering the houses or the flats or the apartments, you're delivering the emotions. Absolutely. And during the conversation, what I felt is so much of blessings you're taking from the people who are who used to stay over there, right? So that is also very important. And in the pressure of this, delivering so much to the society, to the company, chill kar paate ho aap? 100%. So just you'll be surprised that Tuesday, Wednesday, I don't go to office. And वो जो 2 दिन रहते हैं उसमें I am a very vivid reader and I like to learn. And वो 2 चीज़ मैं they are like hobbies for me. तो in fact ये 2 दिन जो होते हैं वो मेरे होते हैं जिसमें मैं पढ़ता हूँ. मैं काफ़ी सारे अपग्रेडेड चीज़ें जो दुनिया में चल रही है वो लेते रहता हूँ. एंड आई थिंक ये 2 दिन में मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरा नॉलेज में whatever I escalate in my knowledge goes back to the growth not only of the company but of the society and my family also. And ये बहुत ज़रूरी है. I would request all the entrepreneurs कि 2 दिन आप आपके रेगुलर एक्टिविटीज़ से ब्रेक लीजिए and just give them to educate yourself, because if you get educated, if you get enlightened, only then your company, your family and the society is going to get enlightened. Any tip for the upcoming entrepreneurs, because a lot of people wants to become and they are becoming entrepreneurs? So there's only one tip I will give you, which has I think helped us to navigate, that please be true to your passion and profession. Money will come, it's a byproduct, but the honesty and the passion आपका 100% होना ज़रूरी है, because you should always feel that you are a blessed person among the population of 140 crore, that God has given you this tool. God has blessed you with all the probable resources to do this activity. तो ये आपका दायित्व बनता है कि you have to be honest. Okay, and second thing is be sensitive. I think इस शहर में, सोसाइटी में sensitivity थोड़ी कम हो रही है, and I feel that the day we all become sensitive, we all will become more responsible. So these are the 2 things I think I'd like to share. Thank you so much. That's my time, and thank you so much for giving us your time. Thank you, Sahil. Thank you to you, because it is so nice to talk to you, and so many Mumbaikars I'll be reaching through you. And I just want to say that Mumbaikars, please bless us. We are here to put forward our sincere efforts just to make your life better and your homes better. Thank you so much. We have a show called Love You Zindagi, where we talk about life, where we talk about mental health. I really want to invite you for that particular show, apart from this. Oh, sure. Because I really want to talk a lot about your life and your journey. It was very interesting. Thank you so much. Thanks, sir. Thank you so much. And action. Hi, this is RJ Sahil from 92.7 Big FM, and today we have with us Mr. Shantanu Rane, who is the chairman of Roosevelt Reality. Sir, सबसे पहले मेरे बहुत सारे सवाल हैं. मैं आपसे सबसे पहला सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि ये सब शुरुआत कैसे हुई और कहाँ से शुरू हुआ, मुझे वो जानना है सबसे पहले. Great. First of all, thank you, Sahil. Thank you so much for being and allowing me to be here. And I've heard your shows. And first, let me compliment you. You're fabulous. Thank you so much. So I academically am an architect, and I did my architecture in '97. And after that, I went abroad to basically have some amazing assignments for designing of schools. In 2004, I came back to India, and I was very lucky. In 2004 में India में काफ़ी real estate का suddenly boom आया. And because of that boom, being an architect who had an exposure from abroad, I was very lucky to get amazing work from real estate, mostly residential. वो कहते हैं ना, लाइफ में राइट टाइम, आप राइट जगह पे जब होते हो
तो इट्स यूरेका. तो मेरे साथ फॉर्चुनेटली यूरेका हुआ, एंड विद इन an year's time after I landed in India, I had almost 82 projects as an architect with me. 82 projects. Yes, 82 projects. And the journey went so beautifully for the next 7 to 8 years that in the 6th year of practice, I basically was featured in a magazine for being an architect, young architect having projects of almost 10 million square feet. And it was a huge milestone which I So achieved. 10 million is actually very huge. Yes. And in fact, that really gave the start. That's how it all started. And during this course, I was fortunate to have great clients. बड़े अच्छे डेवलपर्स के साथ काम करने का मौका मिला. And ये करते वक्त कुछ वक्त ऐसे होता था कि कुछ प्रोजेक्ट्स पे हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे, बहुत शिद्दत से रात भर जाग के काम करते थे, एंड फॉर वॉट एवर रीजन द प्रोजेक्ट्स नेवर यूज्ड टू टेक ऑफ, अ फ्यू ऑफ देम, एंड काफ़ी थोड़ा अपसेट महसूस करता था. ऑल्सो एट द सेम टाइम इन दिस पीरियड ऑफ प्रैक्टिस बहुत बार ये हुआ कि कभी कभी जो मन में किया एज अ क्रिएटिव पर्सन वो कर नहीं पाते थे, बिकॉज ऑब्वियसली द डेवलपर हैड देयर ओन कंस्ट्रेंट्स एंड देयर ओन विजन. एंड बहुत बार थोड़ा एक फ्रस्ट्रेशन कभी कभी होता था कि यार डिसअपॉइंटमेंट होता है. और मुझे लगता है कि ये शायद हर एज के और हर तरह के और हर लेवल के इंसान को होता है. मुझे लगता है कि ये शायद कभी कभी शाहरुख खान को भी लगता होगा कि यार ये जैसे मैंने सोचा था यार वैसा नहीं है. एब्सोल्युटली. एंड आई थिंक ये क्रिएटिव लोगों के साथ ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि जब आपको कुछ क्रिएट करना है लेकिन आपको क्रिएट जिसके लिए कर रहे हैं वो बॉस अलग है. सो दैट टाइम दिस कॉन्फ्लिक्ट ऑलवेज इज देयर. आई सो मच अग्री विथ यू. So coming back to the point, so what happened is that ये मन में चल रहा था, and पर it was much at the back of my mind. ऐसा कुछ ठानी नहीं थी कि भाई अभी डेवलपर बनना है. But sometimes I always say about myself that I am an extremely blessed child. काफी मतलब loads and loads of gratitude to Almighty. Why do you feel that? I'll tell you why. First is the incidents I told you कि मैं right time right जगह पे आ गया, and at a young age I got so many projects as an architect. When my transition happened from developer to from architect to developer, उस वक्त भी यही हुआ. इनफैक्ट ये जो कसक थी मन में 7-8 साल से लेके जो मैं अंदर थी पर बाहर नहीं बढ़ रही थी, उसमें आई स्टिल रिमेंबर द डेट वाज 25th of July 2000. It was somewhere in 2014. And उस वक्त ये हुआ कि आई गॉट वन फैमिली, एक मिडिल क्लास फैमिली थी. आई वोंट नेम देम, लेट्स कीप दैट नेम डिस्क्रीट. एंड दे केम टू मी एंड सेड कि सर आपके रिकमेंडेशन, दैट फैमिली वाज नोन टू मी एक्चुअली, एंड उन्होंने कहा कि सर आप जिस प्रोजेक्ट में आपने बोला था उस फ्लैट में हमने फ्लैट तो ले लिया, बट फॉर वॉट एवर रीजन द डेवलपर इज नॉट एबल टू प्रोसीड विद इट. ओके. And I felt very bad about it because I am quite a sensitive person also, frankly, and मन में ये तो दुख था कि वो प्रोजेक्ट भी हमने बहुत काम किया था एंड किक ऑफ नहीं हो पाया था. प्लस ऐसे लोग थे जिनको हमने रिकमेंड किया था उनको फ्लैट नहीं मिल रहे थे. एंड यू वोंट बिलीव, आई जस्ट गॉट गूज़बम्प व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू. जब मैं उनको वो बोल रहा था तब फ़ोन की घंटी बजी और उसी डेवलपर का फ़ोन आया. That developer was also a very good, fine person, but because of his old age and limitation of health issues, he was not able to take it on. Okay. And उसी वक्त जब वो फैमिली सामने बैठी थी उनका फ़ोन आया और उन्होंने बोला कि शांतनु जी ये नहीं कर पा रहा हूँ मैं because of health reason and I have to shift now. And I don't think anybody other than you is whom I can trust, So will you be able to do this project as a developer? And it was like. That's what I say that मतलब वो भगवान ने राइट टाइम पे राइट जगह में जो बिठाने की है उसने ठान ली है, and so and obviously it just didn't take me even 1 second's time. I said yes sir, why not, and वहाँ से हमारी डेवलपर बनने की शुरुआत हुई. and let me tell this to you that maybe उस फैमिली के blessings थे, Almighty के blessings थे कि वो प्रोजेक्ट मैंने उस दिन टेक ओवर किया. and within 18 months time it was a building of 22 floors. हमने वो, और ये कहाँ पे थी बिल्डिंग? ये बिल्डिंग चेंबूर में. ओके. एंड हमने वो प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया विद इन 18 months.
and all the people who had basically lost their hopes of getting house, they could get the house just because of this one amazing thing which happened with us, and us project se I started getting into that space where I was confident now that other than being creative I do have my business sense also, and that is the exact point of transition जब हमारी ये कंपनी बनी, and I named the company Rosewolt. Rosewolt is a German name, and इस नाम का मतलब है mighty horse. Because we are doing it casually, my casual question to you, मेरा हमेशा से एक बड़े लोगों से एक सवाल होता है. Lot of friends who are doing too good work in the industry. मेरे कुछ 2 साल पहले मेरे एक दोस्त थे और हैं भी अभी, जो देहरादून के सबसे अमीर आदमी है ना, और मैं उनसे ये पूछता था कि आप ये मैनेज कैसे करते हो कि इतने सारे लोगों को साथ लेके चलना. मैं वही सवाल आपसे भी पूछना चाहता हूँ कि आपने बोला कि आपने 18 महीने में 18 मंथ्स में आपने पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया. Right. वो पॉसिबल कैसे हुआ, क्योंकि इतने सारे लोगों को, एंड दिस वाज योर फर्स्ट टाइम, और इतने सारे लोगों को साथ लेके चलना, इट इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि कोई ना कोई कहीं ना कहीं तो गिरेगा. Absolutely. I so much understand because I have traveled this journey. So just to continue with where I left actually. So since the whole inception of Rosewolt इस वजह से हुआ कि वो प्रोजेक्ट टाइम पे नहीं हुआ. Just I wanted to tell you कि हमारा रिकॉर्ड है कि we have completed 30 lakh square feet in city of Mumbai, and ये जो सारा 30 lakh square feet हमने जो complete किया है, each and every project of it we have completed either 6 months or 1 year before time, and that's why our tagline is Rosewolt, commitment you can count on time, every time. so just एक topic divert हो रहा था इसलिए मैंने topic ले लिया. Anyways, coming back to your question, I always look at any project like a 400 meter relay race. आपने काफी सारी रिले रेस देखी होगी. ये पहले 100 मीटर एक भागता है, फिर दूसरा भागता है, तीसरा भागता है और चौथा भागता है. तो मैंने इनफैक्ट 2014 में जब रोजवोल्ट बनी, in 2016 I did my management course. Okay. बिकॉज मुझे समझ में आया कि अदर देन बीइंग एन आर्किटेक्ट एंड ऑलरेडी मुझे 10 साल का एक्सपीरियंस था इतने सारे डेवलपर्स के साथ काम करने का, तो एक तो तजुर्बे से मुझे समझ में आया कि डेवलपर्स क्यों गलत जाते हैं. नॉट एवरी टाइम एवरी डेवलपर क्या गलत करने से, rather than looking at the negative side of it, I would say that sometimes उनकी भी इच्छा नहीं होती गलत करने की, but there are multiple reasons, it could be some areas of bureaucracy which they don't understand, it could be focus on finances which they might not understand, whatever it is, and वो अटक जाते हैं. And ये मुझे luckily 2004 to 2014 with so many clients, मैं उनकी मिस्टेक्स से काफ़ी चीज़ें सीखा, एंड ये जो सीखी हुई चीज़ें थी उसमें मुझे एक समझ में आया कि रोजवोल्ट अगर एक ऑन टाइम डिलीवरी वाली कंपनी बनानी है तो रियल इस्टेट में सेल्स, फाइनेंस, अप्रूवल्स, लीगल एंड कंस्ट्रक्शन, ये पांचों टीम हमारी खुद की होनी चाहिए. इसलिए इफ यू सी आवर स्ट्रक्चर, रोजवोल्ट में वी हैव 5 प्रिंसिपल्स. 5 प्रिंसिपल्स मतलब बीरबल के जैसे 9 रत्न थे, जैसे मेरे 5 रत्न हैं. बताओ. एंड ये जो 5 रत्न है वो हर एक 5 अलग अलग डिपार्टमेंट संभालते हैं, जैसे मैंने बोला कंस्ट्रक्शन, फाइनेंस एंड ऑल दैट. एंड मैं रिले रेस जो हमारी होती है वो 500 मीटर की होती है. सो ये जो मेरे 5 रत्न भागते हैं वो दे आर ऑलमोस्ट नाउ विथ मी फॉर लास्ट 8 to 9 years now, and they each of them know their jobs very very well, and just because of the way we have got all of them inside a system, जो मैंने रोजवोल्ट इंसेप्शन के 2 साल के बाद जो मैनेजमेंट किया उसमें हमने एक ऐसी सिस्टम बनाई कि ईच डिपार्टमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल इज इन हाउस, एंड ईच डिपार्टमेंट डज देयर ओन जॉब एंड हैंड्स इट ओवर टू द नेक्स्ट वन एंड मूव्स आउट. इसलिए 2 चीज़ें हुई. एक तो वी डोंट डिपेंड ऑन एनीबडी आउटसाइड. सेकेंड, since the team is expert in doing only that particular job, they never fail. So that is the reason why I think we have been always, as I repeat again and again, on time, every time. What is the vision of Rosewolt Realty? So I would say that जो कसक थी as an architect कि क्यों हम सिटी को एस्थेटिकली अमेजिंग स्ट्रक्चर्स नहीं दे पाते. ओके, क्यों हम सिटी को ग्रीन्स ज़्यादा दे नहीं पाते.
green, I meant the Green area belt, where yeah. we can have more trees and all. Okay, ये तो जनरल एज एन आर्किटेक्ट कंसेप्ट थी, बट थ्रू द जर्नी पैरेलली मैंने ये समझा कि बॉम्बे में आज की तारीख में यू स्टडी, आप जो फ्लैट्स लेते हो वो मिनिमम आप सबर्ब में भी लेने जाओ तो 25-30,000 के नीचे आपको फ्लैट्स मिलते हैं. एंड कैन यू इमेजिन एज अ डिज़ाइन आर्किटेक्ट आई पॉइंटेड दिस आउट कि बहुत सारे ये जो फ्लैट्स हम खरीदते हैं उसमें 10 to 15% आपका एरिया पैसेजेस में वेस्ट होता है. ट्रू. जो ना बेचारा डेवलपर आइडेंटिफाई करता है ना कस्टमर को समझ में आता है. सो ये तो मैंने एक पॉइंट कहा. तो अभी इमेजिन करिए कि अगर आप 500 स्क्वायर फीट का फ्लैट ले रहे हैं तो उसके 10% हुआ से 50 स्क्वायर फीट, 50 into 25, तो ऑलमोस्ट आपका 10-12 लाख रुपया वेस्ट गया. एंड इसकी समझ ही किसी को नहीं है. सो वी स्टार्टेड गेटिंग ऑन टू डेप्थ ऑफ दीज काइंड ऑफ टॉपिक्स. फॉर एग्जाम्पल हमने अभी जो ओशिवरा में हमारा जेगन प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, वहाँ पे 400 and 600 स्क्वायर फीट के That's one of your biggest projects. That's one of the big projects, 7-acre project in ओशिवरा अंधेरी. तो उस प्रोजेक्ट में आप दोनों फ्लैट्स आप देखोगे उसमें पैसेज एरिया का वेस्टेज परसेंटेज पता है कितना है? कितना? 0. I really want to visit that site. man. Absolutely, you should come and visit that site. 0% passage waste. 0% of passive wastage, and that is the reason why in 18 months we could sell almost 800 flats there. And this was a mere success of deep diving into what is good for the customers. Similarly, अभी हम एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं चेंबूर में जिसका नाम राया है, which is going to be launching this month itself. वहाँ पे भी other than this zero passage, we created one concept of बालकनी जो होती है, बालकनी में जो हमारा रेलिंग होता है वही को हमने एक फोल्डेबल कॉन्सेप्ट निकाल के क्लोथ ड्राइंग रैक वही बना दिया. You know, so it's such a small thing for people which they need, okay, but nobody thinks about it. तो रोजवर्ल्ड में एवरी फोर्टनाइट हमारी मंथन मीटिंग होती है. Okay. यस, एंड इस मंथन मीटिंग में हम इन सारी चीज़ों के ऊपर फोकस करते हैं. इन 5 मेरे जो रत्न हैं उनके साथ बैठ के कि कैसे हम ऐसे प्रोडक्ट बना पाए जो हमारे जो एंड कस्टमर है उनको फ़ायदा दे. जो चीज़ें उनको नहीं समझ रही है कैसे हम उनको समझा के उनके बेनिफिट की तरफ इन चीज़ों को लेके जाए. यू नो, इवन थिंग्स लाइक कभी कभी लोग फ्लैट्स लेते हैं, एक पॉइंट के आने के बाद यू नो दे मे बी वांट टू समटाइम्स डिसकंटिन्यू बिकॉज उनकी ट्रांसफ़र हुई है या वट एवर, या मे बी इन्वेस्टमेंट पर्पज से उन्होंने फ्लैट लिया है. तो उनको हम बाहर ऐसे ही ऑफशोर नहीं छोड़ते. हमने हमारी इन हाउस कंपनी बनाई है जिसका नाम मैकलर है. मैकलर यही फ्लैट्स उनसे लेके रेंट भी करता है और अगर उनको रीसेल करना है तो रीसेल भी कर देता है, और वो भी हमारी इन हाउस कंपनी है. सिमिलरली लोग अंदर जाने के बाद जो उनका मेंटेनेंस होता है वो भी हम बाहर नहीं देते. हमने हमारी इन हाउस कंपनी बना ली है इंटरनिया करके, जो एक्चुअल रेट पे सोसाइटी का मेंटेनेंस आफ्टर द शिफ्ट फॉर द नेक्स्ट 3 years करती है. सो ये सारी चीज़ें जब हम लोगों को सामने लाते हैं तो ऑब्वियसली वी अंडरस्टैंड दैट अदर देन रोजवर्ल्ड्स लास्ट टाइम प्रोजेक्ट देयर इज नोबडी इन कॉम्पिटिशन फॉर अस. एंड मेरा ये हमेशा मानना रहा है कि वी डोंट कम्पीट विद एनीबडी. वी फील दैट. मैं इसी सवाल को, ये जो आपने बोला वी डोंट कम्पीट विद एनीबडी, मैं इसी सवाल को थोड़ा सा और गहराई में जाना चाहूँगा. इसी सवाल के और आपसे जनता के लिए मैं आपसे बात करके समझ गया हूँ कि आपका थॉट प्रोसेस क्या है ना, हाउ डू यू डिलीवर. बट जस्ट टू मेक देम अंडरस्टैंड, आई जस्ट वांट टू आस्क यू, ये बहुत ही कॉम्पिटिटिव मार्केट है रियल एस्टेट. राइट. शायद हर गली में, हर कोने पर कोई ना कोई बड़ा डेवलपर बैठा है. यस. रोजवर्ल्ड रियलिटी इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में खुद को बनाए रखने के लिए किस तरह से कोशिश कर रहा है और किस तरह से बाकी डेवलपर से वो अलग है. So first, as I said, that we never have this pressure of being in competition with anybody. हमारी competition किसी से नहीं है. हम मानते हैं सभी अच्छे हैं, हमको अच्छा होना है. हमारे जो प्रोजेक्ट हमने लास्ट ईयर लॉन्च किया उससे हमारा ये वाला प्रोजेक्ट जो है वो बेहतर होना चाहिए. एंड इस चीज़ के लिए हमारी ये जो मंथन मीटिंग होती है फोर्टनाइट वाली, उसमें हम मंथन में ऐसा अमृत निकालते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट इतना बेहतर हो जाता है कि इट इज़ नॉट ओनली अबाउट कमिंग एंड बाइंग द फ्लैट, इट इज़ अबाउट ईच एंड एवरी स्मॉल डिटेल. जो बायर है, फ्लैट बायर है, वो सपोज उसे फाइनेंस का इशू है तो फाइनेंस रिजॉल्वमेंट की टीम है वो भी हमारे अंदर बैठी हुई है. सो यू नो इट हेल्प्स देम टू क्रिएट फाइनेंस. एक यंग बंदा है, ओके, उसको फाइनेंशियली दे रहा एरिया ऑफ कंसर्न कि मैं इतना मेरे पास है, मैं आगे का पैसे कैसे जुटाऊं, उसके लिए भी हमारी एक इन हाउस फाइनेंस काउंसलिंग टीम है. ओके. सिमिलरली जैसे मैंने बोला
कि पैसेज फ्री, ये वाला कॉन्सेप्ट हमने निकाला है। अभी रिसेंटली हम एक नया कॉन्सेप्ट निकाले हैं चेंबूर प्रोजेक्ट में, जहाँ पे पैसेज में वी आर क्रिएटिंग अ स्मॉल निश, जहाँ पे वो उनका शू रैक बना सकते हैं, यू नो। सो दीज आर स्मॉल थिंग्स आई थिंक अ पर्सन हु कम्स विद अस, ओके, सीज इट एंड अंडरस्टैंड्स कि यहाँ पे हमारे लिए सोचा गया है। Exactly. And I think the minute in today's world you feel that somebody is genuinely thinking about you, so the game is over there. मुझे लगता है कि घर खरीदना, घर बेचना बिजनेस से ज्यादा इमोशंस का काम है। Absolutely. एंड दैट्स व्हाट यू आर थिंकिंग। आपने मुझे बताया एक शू रैक, मैंने इमेजिन कर लिया कि कैसा होगा। एंड दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि इट इज अ इमोशन। Yes. तो जब भी ये सारी बातें होती है, आपने बोला कि कस्टमर्स आपके पास इन्हीं सब चीज़ों की आती है, मेरे साथ कोई एक ऐसी स्टोरी शेयर कीजिए जो आपने कभी किसी को नहीं बताई हो और आपके दिल के बहुत करीब हो और आपको बहुत याद रहती है वो स्टोरी जब भी आप रोजफॉल्ट रियलिटी की बात करते हैं। You mean to say about the people who bought the कस्टमर flats? एक्सपीरियंस क्या है? Oh, fantastic. Great. So, if I need to specifically pinpoint one point where, you know, I really felt very happy is a project which is a project which is very close to my heart, which is in Ghatkopar. ये प्रोजेक्ट हमने लिया था कोविड पीरियड में एंड इट वाज अ ओल्ड बिल्डिंग, रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट था एंड वहाँ पे आई थिंक 60 to 70% ऑफ जो लोग थे दे वर अबाउ 70 years एंड जब उनको हमने रेंट दे के खाली किया तो उसमें से देयर वाज वन लेडी who came to me and she just got one nariyal, you know, Shrifar, we call it Shrifar because yeah, and she gave it to me and she said कि शांतनु जी मेरी एक ही ख्वाहिश है कि मुझे मैं खुद इस घर में वापस आना चाहती हूँ, यू नो। एंड मतलब यू नो ये इमोशन सबका होता है। अब आप देखोगे कि बहुत सारे रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में स्पेशली दीज ओल्ड पीपल हु आर देयर, यू नो, दे ऑब्वियसली हैव दिस ड्रीम ऑफ, यू नो, ensuring that वो घर उनके लिए, उनको बच्चों के लिए, you know, वो बन के वो वापस खुद अंदर जाए, you know, because कोई डिले हो जाता है तो, you know, उनका ये सपना ही रह जाता है। एंड ट्रस्ट मी, वो श्रीफर मेरे लिए मतलब इतना वो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, you know, एंड बीइंग अ क्रिएटिव पर्सन मैं काफ़ी सेंसिटिव भी हूँ, तो वो लेके मैं आई केम बैक एंड अनफॉर्चुनेटली विद इन वीक्स टाइम कोविड स्ट्रक एंड ट्रस्ट मी, वो श्रीफल मेरे घर में होता था एंड एक कोविड का पीरियड चल रहा था। यू वोंट बिलीव, आई डिसाइडेड दैट व्हाट मे कम। कोविड पीरियड में अगर आपको याद होगा कि गवर्नमेंट ने एक लिमिटेड पीरियड दिया था हमें, यू नो, कंप्लीट करने के लिए, मतलब कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी लिमिटेड ओपनिंग रखी थी। आई डिसाइडेड कि वेदर वी मेक प्रॉफिट वी डोंट मेक प्रॉफिट्स, वी आर गोइंग टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट इन 18 months एंड आई एम सो हैप्पी एंड प्राउड टू से कि हमने 100% लोगों को विद इन 18 months ये प्रोजेक्ट भी हमने कंप्लीट किया एंड वो श्रीफर लेके, मैं वही श्रीफर लेके सारी लेके उनको वापस वो देखे आया एंड इनफैक्ट इफ यू वांट आई कैन शेयर दैट फोटोग्राफ विथ यू एंड दैट लेडी वाज इन टीयर्स एंड वो टीयर्स हमारे लिए इतने मतलब बढ़िया, हमारा एक यू नो आई वुड से वो पद्मश्री था मेरे लिए, यू नो, कि एक ऐसी व्यक्ति को उनका घर वापस देना and that too in COVID period, that was a huge thing for us and again coming back to the point, उस वक्त हमारा खुद का कॉन्फिडेंस इतना बूस्ट हुआ कि विद कोविड विदाउट कोविड रोजवॉल्ट जिस बेस पे आधारित है कि भाई हम हमारा हर एक प्रोजेक्ट टाइम पे देते हैं, उसके ऊपर हम कोविड में भी खड़े रहे, यू नो, एंड दैट इज व्हाट आई थिंक रियली आई फील दैट गॉड हैज ब्लेस्ड अस विद द होल प्रोबेबिलिटी स्ट्रेंथ ऑफ द टीम दैट वी आर एबल टू डू दिस एवरी टाइम। As a leader in the real estate industry, what do you believe are the key factors shaping the future of luxury housing in Mumbai? Well, I think every development house which right now exists in Mumbai have to really in depth understand the meaning when they brand a project. For example, you must have seen nowadays कि luxury बोला जाता है, but unfortunately the size of the rooms are so small कि उसको कैसे हम luxury कहें. So when we started getting into the luxury segment, I was very clear in my mind कि boss when it is luxury, आपके bedroom sizes है
वो मिनिमम 15x20 के होने चाहिए। आपका जो लिविंग रूम है वो मिनिमम टू मिनिमम 300 स्क्वायर फीट का होना चाहिए। सी दैट इज व्हाट यू कॉल लग्जरी। यू कांट कॉल अ फ्लैट which has beautiful cladding on the outside, but अंदर से फ्लैट्स का साइज ही कम है। सेकेंड थिंग इज अदर देन द साइज ऑफ द रूम, अदर देन द एस्थेटिक्स जो देना ही है बिकॉज इट इज लग्जरी, वी फील दैट आपकी लग्जरी आपको घर देने तक नहीं रहती। घर देने के बाद इफ यू कैन पैम्पर देम बाय गिविंग देम अ chauffeur when they come and want to park their car, that is luxury. So that's why we created a company called Eternia. So Eternia basically takes care and pampers everybody, okay, who are part of Roseworld Luxury Housing. And in this inception, you'll be surprised that slowly and steadily we are gaining such amazing kind of walk-ins because of the great stuff which we have done. And I look that हमारा जो luxury segment है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से हम grow करेंगे. So you can say that Roseworld is the father and Eternia is the mother. Roseworld creates it and the mother takes care. बट ऐसी कोई चीज़ है जो आपने नहीं करी? बिकॉज यू हैव, आपके पास जितनी भी सर्विसेज है उन सब सर्विसेज की आपके पास खुद की कंपनी है। Yes. हाउ मेनी कंपनी यू हैव? So basically, as far as companies से ज़्यादा, I would like to say that because companies we make one company for each project, that's the way the finance world works. But if you ask me the services, so what we do is that any services which we need to upgrade the product, okay, वो हम value add करते हैं। तो in that context, we have 4 companies. One company which is a development company. Second company is Mackler, which helps you to sell your premises or rent them if you want to do that after buying. Third is a company called Eternia, which basically helps you to ensure that maintenance, आपको पैम्पर करती है बेसिकली फ्लैट लेने के बाद, बिकॉज बहुत बार ये होता है कि फ्लैट तो ले लिया पर अभी यहाँ पे लीकेज हो रहा है, अभी इसका क्या करे उसका क्या करे। आई थिंक दैट्स अ ह्यूज प्रॉब्लम। एब्सोल्युटली। एंड दैट सी रोजवर्ल्ड आल्सो वेंट थ्रू अ जर्नी जहाँ पे हमारे कुछ इनिशियल प्रोजेक्ट्स में हमें प्रॉब्लम आए एंड हम फायर फाइटिंग किया करते थे, बट आफ्टर आई डिड माय मैनेजमेंट आई अंडरस्टूड दैट वी हैव टू हैव आवर ओन इन हाउस ब्रांच, सो अभी नाउ दैट branch totally takes care of that particular thing. And हमारी जो the other company which is there, that company is called Render O25. Render O25 में अभी हम लोग ये नई इम्बाइब कर रहे हैं कंपनी। उसमें अगर आपको हमारे से घर लेने के बाद उसका इंटीरियर भी कराना है तो Render O25 is ready for you so that they can come in and do the interior also. Because बहुत बार ये होता है कि आप इंटीरियर जब बाहर देते हो तो वो जो इंटीरियर या जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं वो आपके एग्जिस्टिंग पाइपलाइंस या वाटर प्रूफिंग होता है वो तोड़ देते हैं, फिर वो ऊपर वाला फ्लैट नीचे वाला फ्लैट आपके घर में ये हुआ इसलिए हमारे घर में लीकेज, ये सारे प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाते हैं। सो दैट्स व्हाई दिस इज द 4th कंपनी वी हैव लॉन्च्ड एंड वी आर होपिंग कि और भी कुछ हो तो पक्का वी वांट टू एंश्योर कि एनीथिंग विच एंश्योर्स दैट नॉट ओनली द प्रोसेस ऑफ बाइंग बट इवन द प्रोसेस ऑफ स्टेइंग इज व्हाट वी वांट टू टेक केयर ऑफ। मेरा सवाल आपसे है कि व्हेन यू आर ग्रोइंग अप, When you're growing up, क्या आपने कभी सोचा था कि आप यहाँ पे पहुँच जाओगे, रोजवर्ल्ड रियलिटी कुछ बन जाएगा? रोजवर्ल्ड रियलिटी, सॉरी, let me take it. मैं asking, when you're growing up, हर इंसान के बचपन में कोई ना कोई कहीं ना कहीं या तो माता पिता एक सपना डाल देते हैं या ये समाज एक सपना डाल देता है या वो खुद कई बार कोई एक सपना देख लेते हैं। आपने कभी बचपन में सोचा था कि ये रोजवर्ल्ड रियलिटी नाम की कंपनी बनेगी एंड यू विल बी एन आर्किटेक्ट, ऐसा कभी आपने सोचा था? So I never had thought about all this, and I think my life, as I told you, has been a blessed life. कि कुछ ऐसी चीज़ें होती गई and मैं मेरे दिल की सुनता गया and वो कारवा भी बनता गया and ये सफ़र भी चलता गया, so there was nothing that I wanted to make a real estate company, architect. एक creative इंसान में obviously था and I wanted to create something nice, So in fact, even now I feel that in spite and after the journey where we have completed 30 lakh square feet, अभी भी फाइनेंस टीम कभी कभी मुझे टोकती है बिकॉज जब मैं साइट्स पे जाता हूँ और मुझे कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती तो मुझे 1 सेकंड लगता है वो तोड़ के फिर से बनाने का, because I want things to happen that way. So
frankly, I feel my creativity dominates my business sense, you know. And ये भी एक कारण है कि ये मेरा दिल है जो क्रिएटिव है, मैं उसकी मानता हूँ। जो दिमाग है कहेगा कि भाई तोड़ते क्यों हो गई, you know, बनाया हुआ है, you know, बाकी 10 लोग जो बाजू में होते हैं उनको तो ठीक ही लगता है वो, but then I don't you know allow my brain to supersede my heart, and I think that is the core reason that we are as a group, you know, we slowly and steadily are creating a mark in the minds of people. ये सारे सवाल जो मुझे लिख कर दिए गए थे वो है, इनमें से कुछ बहुत सारे सवाल थे जो नहीं लिखे हुए थे, मैंने अपने मन से पूछे बिकॉज आई वाज रियली इंटरेस्टेड। माय लास्ट क्वेश्चन टू यू कि आपको डर लगता है किसी चीज़ के लिए या किसी चीज़ से